Hello everyone, welcome to my channel Do to Study. So I welcome you all to a brand new video of civics. Okay, so here we will discuss chapter 1, the Union Parliament, and in this particular video we are going to discuss some powers and functions of Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, so we have already discussed the functions regarding the legislative matters. In today's video, we will start with financial powers. Okay. So, the rest of the topics regarding this chapter is already uploaded. You can watch them by going to the playlist of my channel. Okay. The playlist name is Civics. And for history videos, you can see the playlist of history. Furthermore, if you want to study geography, then that's also is uploaded in my channel. So you can go to the playlist, check it and study. Okay, so let's get started. Financial powers. So here we'll discuss all the powers with the Lok Sabha and Rajya Sabha regarding the financial matters. So before beginning this, I want to say that in financial matters, the Lok Sabha plays a bit more important role or plays the most important role rather than the Rajya Sabha. Because in financial matters, Rajya Sabha only has an advisory role. Okay, मतलब लोक सभा जो डिसाइड करेगा वही होता है, बस राज्य सभा से एडवाइस लेते हैं, recommendations लेते हैं. Okay, so the first one is the budget. Now you all must have heard about budget, isn't it? Because in every year, in every session, in every budget session, isn't it? We listen about budget. Now what is it? It presents an estimate of the expenditure and receipts of the forthcoming year. मतलब कि ये बजट में वो सब चीजें इंक्लूड होता है कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, मतलब कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर फैसिलिटीज लाने के लिए, पीपल के लिए कुछ फैसिलिटीज करने के लिए. ऐसे बहुत सारे चीजें रहते हैं जो एक कंट्री के रिगार्डिंग कंसर्न मैटर्स बहुत सारे रहते हैं. तो फिर वो सब मैटर्स के लिए हमें फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना पड़ेगा ना. तो फिर वो सब मैटर्स कहाँ कहाँ पे कितना कितना अमाउंट स्पेंड होगा, इसका एक एस्टिमेशन, मतलब एक रफ आइडिया, वो सब हमें ये बजट से मिलता है. फर्दरमोर तो यही बजट से एक पूरे साल के लिए ये बजट इंट्रोड्यूस होता है. ओके, तो बजट जो है, The Parliament passes the budget. Okay, अब बजट भी दो तरह के बजट होते हैं, रेलवे बजट एंड जनरल बजट. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द सप्लीमेंटरी ग्रांट्स. अब ये सप्लीमेंटरी ग्रांट्स क्या होता है? सप्लीमेंटरी ग्रांट्स तब यूज किया जाता है जब जो अमाउंट एक ईयर के लिए एलोकेटेड है वो सफिशिएंट नहीं होता है. देन द गवर्नमेंट कैन मेक अ न्यू ग्रांट, दैट इज द सप्लीमेंटरी ग्रांट. ओके, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जितना अमाउंट एलोकेट किया गया था वो सफिशिएंट नहीं होता है, देन इट्स द सप्लीमेंटरी ग्रांट इज डिमांडेड. ओके, नाउ द थर्ड वन इज वोट ऑन अकाउंट. वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? सी, इफ द यूनियन बजट इज नॉट पास्ड until till the financial year, that is April 1. अगर April 1 तक, April 1 को April 1 से और एक April 1 तक, next April 1 तक एक financial year कहा जाता है. हमारे लिए January to January एक 1 year का term रहता है, but for financial year is one April 1 to the next year. Okay, so अगर एक financial year के लिए, एक financial year begin होने से पहले तक भी, even if union budget is not passed, अगर union budget pass नहीं हुआ है, then the vote on account, by using the vote on account, the government can take money from the consolidated fund of India. Okay, तो जो consolidated fund of India है उससे government money ले सकता है for the purposes regarding people, regarding the governance. Okay, सो अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारे जो रेवेन्यूज कलेक्टेड होते हैं, सो वो सब जो वेल्थ है सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज
salaries. The parliament, जो parliament है, that is including Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. The parliament decides the salaries of the MPs and ministers. Okay, there's nothing more to discuss about that. And the next one is permission for taxes. See, no tax can be imposed or the money can be spent. मतलब अगर कोई टैक्स इम्पोज करना है या फिर कोई चीज के लिए मनी स्पेंड करने से, अभी आप जानते होंगे कि कोविड-19 के लिए पीएम ने कितना ह्यूज अमाउंट स्पेंड करेंगे बोले हैं, इजंट इट? तो जो कोई भी टैक्स लेवी करने के लिए या फिर कुछ अमाउंट कोई पर्टिकुलर मैटर के लिए यूज करने के लिए, सबके लिए पार्लियामेंट का परमिशन होना जरूरी है. दैट मैटर शुड बी डिस्कस विद द पार्लियामेंट. देयरफॉर परमिशन फॉर टैक्सेस. ओके, नो टैक्स कैन बी इशूड और नो मनी कैन बी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, तो ये सब थे फाइनेंशियल पावर्स. यस, फाइनेंशियल पावर में आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि लोकसभा जो है वो ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, whereas राज्यसभा जस्ट प्लेज एन एडवाइजरी रोल. अब जो मनी बिल्स होते हैं, ओके, द मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. ओके, आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस दे आर सेंट टू द राज्यसभा फॉर कंसिडरेशन फॉर ओनली 14 days. ये 14 डेज के अंदर उनको अपना रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करना है और जो रिकमेंडेशंस दिया जाता है, इट्स अप टू द लोकसभा वेदर दे हैव टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और नॉट. इट्स देयर विश. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जुडिशियल पावर्स. मतलब जुडिशियरी मैटर्स में राज्यसभा और लोकसभा का क्या पावर्स है. ओके, नाउ यू ऑल नो दैट जुडिशियरी पावर्स तो जजेस दैट इज कोर्ट्स के पास होता है, बट स्टिल द राज्यसभा एंड लोकसभा हैव आल्सो सम जुडिशियरी पावर्स. सो लेट्स सी व्हाट आर दे. फर्स्ट वन इज इम्पीचमेंट टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को इम्पीच करना मतलब उनके पोजीशन से हटा देना. ओके, सो प्रेसिडेंट को कब हम इम्पीच कर सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को वायलेट करते हैं या कुछ ग्रेव मिसकंडक्ट कुछ करते हैं, then both राज्यसभा and लोकसभा can come forth for the impeachment of the president. Okay, so impeachment में जब ये impeachment का मैटर पुट किया जाता है वोटिंग के लिए, तो वो जो मैटर है उसको 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का सपोर्ट होना जरूरी रहता है. 2/3 मतलब जितने भी द टोटल स्ट्रेंथ जितना होगा उसका 2/3 ये मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, प्लस मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्लस मतलब जितने भी मेंबर्स जब ये वोट के लिए पुटअप कर दिया जाता है तब जितने मेंबर्स वो सेशन में प्रेजेंट होंगे, वो मीटिंग में तब जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे होंगे उनका भी मेजोरिटी. ओके, सो हियर देयर इज अ लाइन which you should mark or give importance. See, impeachment of the president. The parliament performs some judicial functions. It has the right to remove the president from office in case of violation of the constitution or grave misconduct. Either house may frame charges against the president. मतलब ये जो चार्ज है वो आइदर राज्यसभा रेज कर सकता है या फिर लोकसभा, इनमें से कोई भी हाउस चार्ज को रेज कर सकता है. इफ अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. टोटल जितना भी स्ट्रेंथ है हाउस का, उसका अगर 2/3 मेजोरिटी 2/3 मेंबर्स ये मोशन को सपोर्ट करते हैं, एंड 2 क्राइटेरिया है. ओके, एक तो 2/3 मेंबर्स जो टोटल मेंबरशिप है हाउस का उतना सपोर्ट करना चाहिए, एंड बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ऐसा तो नहीं होता है कि जितना भी टोटल स्ट्रेंथ है सारे के सारे तब वो मीटिंग में प्रेजेंट होंगे. सो
एंड द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने तब प्रेजेंट होंगे और जितने वोटिंग कर रहे होंगे उनका मेजोरिटी। ओके, सो दो क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। द अदर हाउस, जो भी हाउस ये चार्ज किया होगा और ये रिजोल्यूशन को इफेक्ट दे दिए होंगे, देन द अदर हाउस, सपोज अगर लोकसभा चार्ज किए हैं देन द राज्यसभा, एंड इफ राज्यसभा चार्ज किए हैं देन द लोकसभा, देन व्हाट दे विल डू, दे विल इन्वेस्टिगेट अबाउट द मैटर्स दैट इज रेज्ड, they will investigate about the complaints that is raised against the president. If they also feel yes that the president should be impeached, then the impeachment process will take place. Okay, now the second one is the removal of judges etc. मतलब both Lok Sabha and Rajya Sabha can take or has powers to remove the judges of Supreme Court, judges of High Court, and furthermore the Chief Election Commissioner and the Comptroller and Auditor General of India. अब क्यों रिमूव कर दिया जाता है? इफ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज को वायलेट कर रहे हैं, देन दीज पीपल, देन द पार्लियामेंट कैन रिमूव देम। ओके, देन द थर्ड वन इज पनिशमेंट। इसका मतलब क्या है? इफ समवन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द हाउस टू कंडक्ट इट्स बिजनेस, और if someone shows misconduct, then the house can give punishment to them. मतलब कि जो नॉर्मल बिजनेस होता है हाउस का, उसका फंक्शनिंग के लिए कोई अगर ऑब्स्टेकल बने, कोई अगर बाधा बने, then the parliament can take action. Okay, see, the parliament can punish a person for obstructing the work of parliament or showing disrespect to the house. Okay, now here is the third one, the electoral function. Election क्या function है? Election के regarding parliament का क्या function है? Okay, first one is elects president of India. Yes, the house, which house? The Parliament of India, that is both the houses, the Rajya Sabha and Lok Sabha, the Parliament of India along with the state legislature. Okay, along with the state legislature elects the president of India. जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों के मेंबर्स, प्लस हर एक स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर कोई स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, देन बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, ये सब के मेंबर्स मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय whom? By both houses of the parliament, that is by both the members of both Lok Sabha and Rajya Sabha elects the vice president of India, while for the president he is elected by both the parliament and the state legislature, while for the vice president he is elected by both houses of parliament, that is the Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay, these questions can come as one marker, so you have to remember them. Okay, the fourth one is speaker and deputy speaker. Yes, in Lok Sabha, जब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप पढ़े हैं वो ना, देखे वो वीडियोस, तब मैं एक्सप्लेन की थी कि जब लोकसभा फर्स्ट टाइम आफ्टर इलेक्शन न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जब पहले बार मिलते हैं, तब उनमें से एक जन को स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इलेक्शन, तब उनमें से ही एक जन को स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है बाय इलेक्शन। तो वही है, सी द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा। While if we talk about the Rajya Sabha, then Rajya Sabha के presiding officer कौन होते हैं? Vice President. He is already elected by the both house of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. But एक deputy chairman भी होता है, isn't it? So the deputy chairman is elected by the Rajya Sabha. तो ये सब था electoral functions. Okay. So इधर हमने financial powers, judicial powers, electoral functions सब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? हमने बहुत बार सुना है कि अमेंड करना, इसका मतलब क्या होता है? सी, अमेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो लॉज ऑलरेडी रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में,
अगर सिचुएशन के हिसाब से एज पर द सिचुएशन इफ देयर इज अ नीड टू चेंज सम लॉज देन एन अमेंडमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अगर जो लॉज ऑलरेडी प्रेजेंट है उनमें कुछ चेंज करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत साल पहले लिखा गया था, तो फिर तब के सिचुएशन के हिसाब से लॉज बनाया गया है. बट आज के सिचुएशन में बहुत सारे चेंजेस हो गए, इजंट इट. पहले देयर वाज नो इंटरनेट, सो उसके तो इंटरनेट के बेसिस पे कोई लॉज लिखा ही नहीं गया है. बट नाउ वी हैव इंटरनेट फैसिलिटीज एंड देयरफॉर देयर आर क्राइम्स रिलेटेड टू इंटरनेट, तो उसके बेसिस पे अभी नया लॉज बन के आया है, इजंट इट. तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता ही जा रहा है. तो इसीलिए जो लॉज प्रिवेलिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें कुछ चेंज करने के लिए पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट पास करता है. ओके, सो ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट दैट इज बोथ हाउसेस जो है वो मिलके पास करता है. एंड मिलके पास करता है मतलब दे हैव बोथ ऑफ देम हैव द राइट टू पास द अमेंडमेंट, देयर इज नो सुपीरियरिटी. ओके, एंड फर्दरमोर जो टोटल मेंबरशिप है ये कब पास होता है, कोई भी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट किया जाता है वो कब पास कब होता है. सी इफ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस सपोर्ट्स इट, दैट इज जितना भी टोटल मेंबरशिप है उसका मेजोरिटी ये मूव को सपोर्ट करे, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने मेंबर्स द प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनके 2/3. ओके, अगर इतना क्या है कि इतना अगर वोटिंग मिल जाता है, इतना अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर जो अमेंडमेंट है वो भी पास हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. यस, एग्जीक्यूटिव जो करेंटली रूलिंग गवर्नमेंट बॉडी है उनके ऊपर कैसे पार्लियामेंट एक कंट्रोल एक चेक रखता है. मतलब कि जैसे कि जिस तरह से जो प्रोसीजर्स हो रहा है वो सब करेक्ट है कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ये सब के ऊपर कैसे एक चेक रखा जाता है. सी देयर आर मेनी वेज. फर्स्ट इज इंटरपेलेशन. इंटरपेलेशन का एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन आवर में. क्वेश्चन आवर और उसके अलावा और भी बहुत सारे मूव्स होते हैं जिससे इंटरपेलेशन होता है, लाइक अटेंशन नोटिस, दैट इज कॉलिंग अटेंशन नोटिस एंड हाफ एन आवर डिस्कशन. ये सब कुछ डिवाइसेस है इंटरपेलेशन का. इंटरपेलेशन में क्या करते हैं, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब करेंटली जो पॉलिसीज अप्लाई हो रहे हैं वो किस हद तक अप्लाई हो रहा है, वो क्या करेक्टली सारी जो नीडी पर्सन्स है उनको मिल पा रहा है कि नहीं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स, दैट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैम वी गेट बाय इंटरपेलेशन. क्वेश्चन आवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आवर के बारे में आपने ऑलरेडी जान चुका है. Question hour, it's the first hour of the sitting of the parliament in which questions are raised to the ministers. That is the members of the parliament raise question to the ministers for which they have to answer, isn't it? तो इससे जो ये एक चेक की तरह एक्ट करते हैं. दैट इज अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है then they can be caught by the interpellation. Okay. Second one is adjournment motion. Adjournment motion, that is to lay aside all business and take up a matter of definite importance, isn't it? तो अगर कुछ पब्लिक इम्पोर्टेंस का कुछ मैटर है और उसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है, then by this adjournment motion the ministers can bring their notice to the governing bodies regarding the particular matter. Okay. The third one is vote of no confidence. Yes, the vote of no confidence can be passed by the Lok Sabha for against the current ruling Council of Ministers. Against the Council of Ministers. The Council of Ministers होते हैं वो collectively responsible होते हैं लोकसभा के लिए. Collectively responsible का मतलब क्या है? See, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब इवन इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोर जो रहता है वो कैबिनेट होता है. ओके, सो जो हाउस या फिर जो रूलिंग बॉडी है वो जो डिसाइड करते हैं,
जो भी उनका डिसीजंस होता है वो इवन इफ एक मेंबर जो है उनमें से एक मेंबर को वो प्राइवेटली वो पसंद नहीं करते हैं, वो जो डिसीजन वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ हमें पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, बट जो पॉलिसी ऑलरेडी पास हो चुका है या फिर डिसाइड कर दिया चुका है या फिर डिसाइड हो चुका है, ओके, देन दैट मेंबर ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट इट and they have in front of media and they have to be and they have to work as a single power, okay. तो ये होता है collectively responsible to the लोकसभा का मतलब, okay. Now अगर एक vote of no confidence पास किया जाता है then the whole minister, the council of ministers, the whole ministry will resign, okay, that is they will be dissolved. Now the second the fourth one is other motions of censure. Some other motions of censure are also passed to check the or to see that the government is functioning properly. The fifth one is monetary controls. अब monetary controls क्या होता है? See here that is during the budget session a cut मोशन में भी पास, दैट इज जब बजट सेशन चलता है और बजट जब प्रेजेंट कर दिया जाता है तब अगर कोई पार्टी या कोई मेंबर डिसएग्री करता है, दैट टू बाय अ मेजॉरिटी, अगर डिसएग्री करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देन अ कट मोशन कैन बी पास्ड, ओके. देन इट अकाउंट द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स. पार्लियामेंट्री कमिटी एक कमिटी है जो कमिटी का नाम क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स. नाउ व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस? दे एंश्योर दैट द पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट्स डिसीजन एंड इट एक्सामाइन्स द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, दिस पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स चेक that each coin is spent in accordance with the parliament's decision, okay. Now here we will know about some exclusive powers of Rajya Sabha. See, what are the exclusive powers of Rajya Sabha? You all know that if a matter is listed in the state list, then the parliament cannot make laws on it, but the Rajya Sabha can make laws on it if it has a 2/3 majority. See, by Article 249, the Rajya Sabha may by a resolution adopted by 2/3 majority empower the parliament that laws should be made on a particular matter listed in the state list. Okay, so it was the first special power of the Rajya Sabha, yeah, or special power or exclusive power of the Rajya Sabha. Furthermore, what are the powers? See, the Rajya Sabha may declare that the creation of new all India services be made in the national interest. मतलब कि राज्य सभा डिक्लेयर कर सकते हैं कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए, क्यों? कुछ रिगार्डिंग सम नेशनल इंटरेस्ट, ओके. अब ये न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या सर्विस आते हैं? द पोस्ट ऑफ IAS, IPS एंड IFS, ओके. सो रिगार्डिंग दीज ऑल्सो द राज्य सभा हैज अ सुप्रीम पावर. देन इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया है, मतलब बिफोर या आफ्टर अ नेशनल इमरजेंसी, इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व, then the Rajya Sabha is the supreme, the sole power, that is the sole de facto and the de jure parliament. That is, the Rajya Sabha has all the power to take over the functions of the parliament. Now the Rajya Sabha will alone do the functions of the parliament, okay. And you know that the Rajya Sabha cannot be dissolved as it is a permanent body and 2/3 of its members retire after every 6 months, isn't it? Now there are some exclusive powers of the Lok Sabha too. Well, you know, first the exclusive power of Lok Sabha is regarding the money bill. The Lok Sabha has a supreme power regarding the money bill. That is,
the money bill can only be originated in the Lok Sabha. Then after it's given effect, then it's sent to the Rajya Sabha for consideration for 14 days. The Rajya Sabha has to consider the money bill only within that 14 days, and they have to return back with some recommendations if they wish to give. Now it's upon the Lok Sabha whether they wish to accept the recommendations or not. Okay. Now what's the second one? Motion of no confidence against the government can only be initiated in the Lok Sabha. Okay. That is, till now I have many a times explained about it. So it's the same thing. It's a special power. That is, the Rajya Sabha cannot call for a motion of no confidence. If the members of the Lok Sabha feels that the government is disobeying the constitution or violating some laws of the constitution, then they can call for the no confidence motion. Okay. Then, if there is a deadlock between the two houses regarding a matter that is not regarding the money bill, if any other bill except the money bill, if there is a deadlock between the two houses, then the will of the Lok Sabha prevails. मतलब कि अगर कोई जनरल बिल है, कोई ऑर्डिनरी बिल है और वो बिल के ऊपर एक डेडलॉक है, that is, if one house is opposing it and if the other house is supporting it, तो वो डेडलॉक होता है. तो वो टाइम में जॉइंट सेशन होता है, और वो जॉइंट सेशन को कौन कंडक्ट करते हैं, कौन प्रिसाइड करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था. स्पीकर ऑफ द लोक सभा प्रिसाइड सच जॉइंट सेशन. और ये जॉइंट सेशन में नॉर्मली जो लोकसभा का बिल होता है वो प्रिवेल करता है. ओके. लोकसभा का बिल क्यों प्रिवेल करता है? क्योंकि लोकसभा का जो मेजोरिटी है वो लोकसभा के जो मेंबर्स है वो इट्स रफली डबल दैट ऑफ द राज्यसभा. इसीलिए लोकसभा का बिल प्रिवेल करता है. ओके. सो हमने 3 स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा भी कवर कर चुके हैं. अब सी नाउ लोकसभा को बहुत सारे मैटर्स में अपर हैंड क्यों दिया जाता है? बिकॉज इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, isn't it? तो इसलिए लोकसभा के मेंबर्स दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीपल टू. दैट इज दे कैन नो द ग्राउंड सिचुएशंस. They can know what's the conditions of the people, what are the wants and necessities of the people. Whereas राज्यसभा के जो members होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करते हैं? They are elected indirectly, isn't it? So they are not directly elected by the people. इसी वजह से लोकसभा को हमेशा एक upper hand दिया जाता है. Okay. Now in legislative powers also this difference can be seen. That is, the ordinary bill and the money bill. The ordinary bill can be originated in either house of the parliament, whereas the money bill can only originate in the Lok Sabha. Okay. Now in this ordinary bill also, if there is a deadlock, then the will of the Lok Sabha prevails due to its higher membership or due to its higher strength. Okay. So here we complete the chapter, the Union Parliament, isn't it? Now it's time to end this video, and in my new video I will be coming up with the second chapter of history. The first chapter of history is already uploaded, so in my next video I will be coming with the second chapter of history. Till then, bye bye and study well. If you have any doubt, then do ask in the comment box. Okay, bye.